कैसे हो बेटा? होपफुली बहुत अच्छे होगे। बेटा आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नॉर्मलिटी, होपफुली आपने उसे देख लिया होगा। अब इसमें लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है। पहले मैं इसको सब्जेक्टिव और बेसिक लेवल पे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इन द ऑब्जेक्टिव दैट इज इन द IIT JEE मेंस एडवांस नीट and in other competitions it has very wide explanation and problems, but in the subjective level that is up to NCERT level इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। दैट इज जो आपके स्कूल्स में आ सकता है, जो NCERT बुक में एक्सप्लेन्ड है, देन वी विल डू प्रैक्टिस, ठीक है, सेपरेटली फॉर द ऑब्जेक्टिव वंस। सो पहले इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखिए। स्टॉकियोमेट्री प्रोनाउंसिएशन है स्टॉकियोमेट्री। बहुत से बच्चे इसको पढ़ देते हैं स्टॉचियोमेट्री। ये स्टॉचियोमेट्री नहीं है, इट इज अ स्टॉकियोमेट्री। दिस इज द ग्रीक वर्ड। स्टॉकियोमेट्री इज द ग्रीक वर्ड। इट मीन्स टू मेजर एन एलिमेंट, ठीक है। ये एक ग्रीक वर्ड है जो यहाँ से आया है, टू मेजर एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के मेजरमेंट के लिए इसको यूज करा गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। बट बेसिकली स्टॉकियोमेट्री इज व्हाट? स्टॉकियोमेट्री, मेट्री वर्ड जो है ना लास्ट में, METRY, मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स इन द केमिस्ट्री वी कैन से मेट्री। मेट्री मीन्स कैलकुलेशंस एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स, क्वांटिटेटिव डिस्कशन, ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। मेट्रिक मीन्स this branch of the physical chemistry basically deals with the numericals, a numerical analysis of chemical reactions. That means in stoichiometry we have to study about numericals. We have to find out numericals based on chemical reactions or chemical equations. Stoichiometry also gives quantitative relationship, ठीक है। That means how many moles of reactants are taken, how many moles of products are formed. If there are two types of reactants, then we can say how many moles of reactant 1 will combine with the how many moles of reactant 2 and how many moles of products are formed, ठीक है। Or maybe we can say how much weight of reactant 1 will combine with the how much weight of the reactants 2 and what weight or amount of the products will be formed. So such type of comparison between masses, between volumes, between their moles, between their amounts on the basis of chemical reactions. So we can say stoichiometry deals with the numerical analysis of a chemical reaction. It gives quantitative relationship between the various reactants and products, and its meaning is to measure an element. And three types of problems based on chemical reactions can be asked. There may be mass and mass relation. That means masses of reactants are given and masses of products we have to find out on the basis of chemical reaction. Chemical reaction should be given, okay. Maybe mass and volume relation. That means masses of reactants are given, masses of one reactant is given, products of the volume of the products we have to find out. मास गिवन हो, वॉल्यूम निकालना हो सकता है। मासेस गिवन हो, मासेस ही फाइंड आउट करने हो सकते हैं। वॉल्यूम गिवन हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो सकता है। और हो सकता है इनमें से कोई भी एक चीज, चाहे वो मास हो या वॉल्यूम्स हो, इनको मोल्स के साथ कंपेयर करना पड़ सकता है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस कैन बी आस्क्ड। इट इज द स्टॉकियोमेट्री। By comparing mass, volume or mole of the reactants and products to the balanced chemical equation, chemical reaction should be balanced. Then we have to apply unitary method. Unitary method is a comparison by one, comparison one by one according to the stoichiometric coefficients. ये एक नया वर्ड आया है। What is the stoichiometric coefficient, balanced chemical equation, unitary method? Ultimately मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अब क्या करना है। हमें कोई केमिकल रिएक्शन गिवन होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन गिवन होगी, और उस बैलेंस्ड इक्वेशन के बेसिस पर वी हैव टू फाइंड आउट सम प्रॉब्लम्स इन विच मे बी masses of reactants are given,
masses of products we have to find out, or maybe one of the reactants, okay, maybe one of the reactants we have to find out in terms of mass, volume, moles, and other data are given by comparing their stoichiometric coefficients by applying unitary method. So now what are the stoichiometric coefficients, what is the unitary method, and how can you write a balanced chemical equation, and then how can we solve the problems based on mass relation, mass and volume relation, volume and volume relation, and mass and volume relation. Okay, so watch it. बहुत ध्यान से देखिए. दिस इज द एनसीईआरटी लेवल, और जो एनसीईआरटी लेवल है यही आपके हर एग्जाम का लेवल है, बस थोड़ी सी डेप्थ बढ़ जाती है, क्वेश्चंस को सोचने का तरीका बदल जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, बट कंसेप्ट सभी में यही है. फॉर एग्जाम्पल, I am going to write a balanced equation of the formation of ammonia. Everyone should watch very carefully. This topic is very important for the numericals. In subjective शायद कुछ भी ना है, but फिर भी NCERT level I am going to discuss. N2 plus 3S2 gives ammonia. N2 is gas, S2 is gas, and ammonia is gas. This is the balanced chemical equation. ठीक है, and remember, in any balanced chemical equation, the numbers written just in front of the reactants or products, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 है. These numbers in any balanced chemical equation, in any balanced chemical equations, these numbers are called stoichiometric coefficients. Remember this. What are stoichiometric coefficients? These are the coefficients written just in front of, just along with the reactants and products in any balanced chemical equation. ठीक है, यहाँ पे N2 का stoichiometric coefficient 1 है, हाइड्रोजन का stoichiometric coefficient 3 है, अमोनिया का stoichiometric coefficient 2 है. Stoichiometric coefficient comes under the stoichiometry. Stoichiometry is what? What do you mean by stoichiometry? Stoichiometry means quantitative relationship or numerical analysis of a chemical equation on the basis of their stoichiometric coefficients. It's a measurement of reactants and products amounts, their volume, their masses. ठीक है, now see the general example. एक जनरल एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने. Suppose a reaction is given as A of A, B of B, C of C, and D of D, like this. Suppose this is the general equation, general chemical equation, in which small a, small b, small c, and small d. This is the balanced equation. These are called stoichiometric coefficients of reactants capital A, capital B, and products capital C, capital D, respectively. Understand? These are the reactants and these are the products, and in the balanced chemical equations these small letters A, B, C, D are known as stoichiometric coefficients. Now the question is this: what is the application of these coefficients and how can we relate their masses, their volumes, and their number of moles
or some other data by unitary method. देखिए ध्यान से, बहुत से बेटा बच्चे इवन टीचर ये टॉपिक लीव कर देते हैं, नॉर्मलिटी लीव कर देते हैं, मोलालिटी जस्ट डेफिनेशन करके लीव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको अंडरस्टैंड करने में. बट मेरा कंसेप्ट अलग है. आई एम गोइंग टू गिव यू द कोर नॉलेज, क्वालिटी नॉलेज, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपका बेस स्ट्रांग हो और आप अपने पैरों पे खड़े हो. किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछे आप रिस्पॉन्ड कर सको, आप वहाँ पे ब्लैंक नहीं हो कि ऐसा कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं. ऑल दीज जो आप डिस्कस कर रहे हो ये सब कुछ बुक में है. बट कुछ लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से कि बच्चों के समझ नहीं आएगा क्रॉस इट, या आप ही पढ़ लेंगे या +2 में पढ़ लेंगे, ठीक है. बट अगर आपने इतना ही कुछ करना था तो ट्यूशन्स क्यों रही? दैट इज द क्वेश्चन. सो प्लीज अटेंटिवली देखिए. सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड obtained by complete decomposition of 10 gram calcium carbonate at 1077 Kelvin, ठीक है, according to the reaction. It is given, question is given. मैंने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया. रिएक्शन इज गिवन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को बोलते हैं, हीटेड स्ट्रांगली एट दिस टेम्परेचर. ये बेटा हीट का साइन है डेल्टा. And then reaction is given, you get CaO plus CO2 गैस. बेटर रहेगा अगर आपको इक्वेशन लिखो और इस इक्वेशन में इसके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की स्टेट्स मेंशन कर दो. नाउ यू हैव दिस रिएक्शन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने क्या देखना चाहिए, इज दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो स्टोइकियोमेट्री वहां पे नहीं लगेगी, ठीक है. क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? आपने देखा बिल्कुल है, ठीक है. इधर 1 Ca है, इधर भी Ca है, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, ठीक है. बैलेंस कैसे देखोगे? बाय POAC. POAC का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. जानते हो आप, ये नाम चेंज हुआ है सिर्फ. दैट इज atom cannot be created nor be destroyed. That means total as atoms inside the reactants must be equal to total atoms of the products. Principle of atomic conservation. जितने atoms reactant side है उतने ही product side होने चाहिए. Then reaction is balanced. दोनों चीजें हमने देख ली. क्लियर? अब आप ये देखिए, जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्वेशन बैलेंस है. इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है. मैंने क्या करा, इसका मास निकाला कितना आ रहा है. इसका मास आया कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 100 ग्राम. कितना आया? 100 ग्राम. अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम है, क्या निकालना है? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने ग्राम CO2 मिली? इतने ग्राम अगर ये है, इसको कंप्लीट डिकम्पोज करते हो, देन यू गेट 40 plus 16, that is 56 gram calcium oxide, and 12 plus 32, that is 44 ग्राम CO2 इसका मास है. बस अब इतने पे यूनिटरी मेथड लगा दीजिए. कैसे? फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट we get 44 ग्राम CO2.
बताइए, अगर आपके पास 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है कितनी CO2 मिलेगी? 44/100 ग्राम CO2। एंड देन इन द क्वेश्चन कितना गिवन है? 10 ग्राम। दिस इज यूनिटरी मेथड। 100 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है, 1 ग्राम से 44/100 और 10 ग्राम से कितना मिलेगा? सभी समझते हो आप। Multiplied by this, you get 4.4 gram CO2. This is the answer of this question. सबसे पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद आपको रिएक्शन गिवन होगी, फिर चेक करो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस देखने के लिए दोनों साइड के एटम्स देख लो बराबर है या नहीं है। उसके बाद रिएक्शन में जैसा क्वेश्चन हो, दिस क्वेश्चन इज द मास एंड मास रिलेशन, मतलब आपको मास गिवन है और मास ही पूछा है। जब मास गिवन हो और मास ही पूछा हो तो मासेस को डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए। इसका मास बना 100 मॉलिक्यूलर मास, इसका मास बना 44 एंड फ्रॉम हियर वी कैन से फ्रॉम 100 वी गेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड यू विल ऑब्टेन फ्रॉम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट्स। एंड द क्वेश्चन 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से हमसे CO2 पूछी थी, हमने उसको कंपेयर कर दिया और आप देखिए आंसर आपके सामने है। ठीक है, सो दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, वन मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव 2SO2 plus O2 gives SO3. All are gases and this is the balanced equation। चेक हो रही है? ठीक है, मैंने कहा आपको what is the, ऊपर लिख लेते हैं, what is the volume of SO3 obtained from the combination combination means this one, by adding 1 liter SO2 and 1 liter O2। आपने क्या करा, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर 1 लीटर SO2 और 1 लीटर O2 ऐड कर दी, रिएक्शन कराई। अब आपने बताना है कितना SO3 बनेगा। ये जो बेटा क्वेश्चन है ये दो कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन 2 कंसेप्ट्स, बट फिलहाल स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखिए। ये जो रिएक्शन है मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, और जैसे मैंने आपको कहा था कि बेटा चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस होगी कि यहाँ पे 2 होगा। एंड दिस इज द गैसेस रिएक्शन। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है। आपको वॉल्यूम्स गिवन है, इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर, इसका वॉल्यूम पूछा है। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम रिलेशन। किस टाइप का क्वेश्चन है? बेस्ड ऑन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना, बस यही है स्टोइकियोमेट्री। ध्यान से देखिए, इधर 2 है, इट मींस 2 लीटर ऑफ दिस। इफ वी टेक 2 लीटर ऑफ SO2 देन वी हैव टू टेक 1 लीटर ऑफ O2। अगर आप 2 लीटर SO2 लोगे तो 1 लीटर ये लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। एंड व्हेन दीस टू कंबाइन टुगेदर यू नेवर गेट 3 लीटर। इसके 2 लीटर जब इसके 1 लीटर से कंबाइन होते हैं देन वी गेट 2 लीटर SO3। जब इसका 2 इसके 1 से कंबाइन होते हैं तो इसके 2 बने ना, तो इसके 2 इसके 1 से कंबाइन हुए तो इसके कितने बनेंगे? 2 लीटर। वैसे तो ये गेलो-सैक्स लॉ है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के रेशियोज में रिएक्शंस अकर करती हैं बाय वॉल्यूम अगर गैसेस हैं। आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू गेलो-सैक्स लॉ गैसेस कंबाइन टुगेदर इन द सिंपल वॉल्यूम रेशियोज and a product is also a gas, then there should be the simple ratio। तो अगर आप इसके 2 लीटर लोगे, इसका 1 लीटर लोगे तो इसके 2 लीटर्स बनेंगे। दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो रिलेशन।
but in the question we have 1 liter SO2, 1 liter O2, तो ये कितना बनेगा, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर से रिएक्ट करता है, इसका आपको अभी भी 1 लीटर दिया है, लेकिन इसका दिया है 1 लीटर। इसका मतलब ये है जब इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर से रिएक्ट करेगा तो हमें 1 लीटर ही दिया है, इसका भी 1 लीटर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, ये होना चाहिए था, ये गिवन है। It's 1 liter required, it's 2 liter, but here in the question 1 liter of SO2 is given only, that means this one is in limiting amount। ये कम है, जो कम है उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग अमाउंट। ये एक्सेस में, दैट मीन्स अगर इसके 2 लीटर इसके 1 लीटर से रिएक्ट करते हैं तो इसका 1 लीटर इसके 0.5 लीटर से रिएक्ट करेगा। सो इफ दिस वन रिएक्ट कंप्लीटली, इसका सिर्फ 0.5 लीटर रिएक्ट करेगा तो 0.5 लीटर ये बच गया। अब इसके 2 से इसका 2 मिलता था, इसके 1 से इसका 1 बनेगा। ये यूनिटरी मेथड है, शायद आपको कम समझ आया हो एग्जाम्पल। ये एक बार फिर से देख लीजिए। पहले रिएक्शन देखो, रिएक्शन के हिसाब से ही सारा कुछ हो रहा है। इसके 2 लीटर इसके 1 के साथ कंबाइंड होकर इसके 2 लीटर बन रहे हैं, दैट मीन्स इसके 2 इसके 1 इसके 2 बनेंगे। ये तो रिएक्शन से मिल गया, बट एक्चुअली में हमें डेटा दिया है 1 लीटर ऑफ दिस 1 लीटर ऑफ दिस। हमें पता है इसके 2 लीटर इसके 1 से रिएक्ट करते हैं, तो इसका 1 उसी रेशियो में देखो इसके 0.5 से रिएक्ट करेगा, तो कितना बच गया है, 1 माइनस 0.5 कितना बच गया, 0.5। और इसके 2 से इसके 2 बन रहे थे, तो इसका 1 से इसका कितना बनेगा, 1। सेम रेशियो रखना है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में इसकी अमाउंट कंप्लीटली खत्म हो रही है, ये बच रहा है, तो यहाँ पे कोई डेफिनेशंस भी आएंगी। ये तो हो गया आंसर, बट यहाँ पे इसी आंसर से रिलेटेड 2 टर्म डिफाइन होंगे, ठीक है। दैट मीन्स कोई पूछे आपसे, ये तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आप एक बार फिर से देख लेना, होपफुली आप समझ जाओगे। बट कोई आपसे पूछे व्हाट आर लिमिटिंग रिएजेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे यहाँ पे SO2 था, limiting reagent is the reagent which consumes completely during the reaction। जब कभी कोई रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। जब हम किसी रिएक्टेंट को किसी रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म कर दे, जैसे यहाँ पे SO2 हो रहा था, तब हम उसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। When during an reaction one of the reactant is completely completed or lost out, then it is called limiting reagent। जैसे इस previous question में SO2 था, SO2 is limiting reagent। ठीक बेटा, इसी तरीका से अगर किसी रिएक्शन में कोई रिएजेंट बच जाता है तो उसे बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट, तो उसे बोल देते हैं एक्सेस रिएजेंट। दैट इज द रिएजेंट which is left unreacted after the reaction, जो रिएक्शन के बाद बच जाए और खत्म ना हो। जैसे इससे पहले वाले केस में था O2 0.5 लीटर बच रही है, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, और जो खत्म हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। समझ गए, आगे बात समझ में। तो ये बेटा वीडियो थोड़ा सा देखिए, लास्ट में जो एक न्यूमेरिकल आपको कराया है ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, बट एक दो बार अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। सो होपफुली प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और बुक के बैक साइड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और मुझे प्लीज़ डाउट्स बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच।